pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today I will discuss second MCQ GST goods and services tax. So definitely this part would be interesting one. Just I will discuss some fundamental concepts. Basically, this part also would be useful for KVS exam. So my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Please like my channel, share my channel, and if you find any mistake, please forgive me. Just I am trying. It means for your benefit. You see my WhatsApp number 8327782034. If you need PDF, contact with me in my WhatsApp number. Also, you can join my Telegram channel. Link is t.me/BAPI2034. Search it in Google and join my Telegram channel. So, administrative part PDF is there. You contact with me in my WhatsApp. So, I do not want to waste more time. Now, I am going to discuss the second MCQ part of GST. Question number 1. The number of structures in India's GST model is 4 option 6, 4, 3, 5. So answer is bit B. It means 4 structures. Clear? So you see the 4 structures. It is given. The 4-tier tax structure contains 4 separate rates. A 0 rate, lower rate 5%, standard rate 12% and 18%, higher rate is 28%, and other structures, it is a structure related to the rate. Other structures, central goods and services tax, SGST, state goods and services tax, UT GST, Union Territory Goods and Services Tax, and Interstate Transfer IGST, Integrated Goods and Services Tax. Related to this also 1. Related to the rate 4 structure, and related to the tax also 4 structures. Clear? Next one, IGST, Integrated Goods and Services Tax, is billed as soon as the stock is federal, intra-UT, intrastate, all of the above. So definitely answer is bit A, it is federal. With intra-UT, it is central GST. Clear? Here you see intra-UT, it is central GST plus UT GST. 50-50. 50% goes to the central government, 50% goes to the union territory. Intrastate, it is CGST plus SGST. Again 50-50. 50% goes to the central government and 50% goes to the state government. But it is federal one. In case of IGST, interstate transfer. When the good transferred from one state to another state. Similarly, IGST also related to the import of goods from abroad. Related to the import of goods from abroad. Okay, and another one, interstate transfer. IGST is there. And one thing remember, in case of IGST, the manufacturing state cannot collect tax. In which state actually the consumers consume the commodity. In which state, okay, the place of supply is there. This state only collect the GST, right? So it is federal in nature. Answer is bit A, right? Question number 3. As a result of the Constitution Amendment for GST, a separate list has been inserted into the Constitution. One separate article inserted in the Constitution
So what is the article name? 4 options: Article 246A, Article 146B, Article 122C, Article 101B. Answer is bit A. Okay, Article 246A. Okay, this article inserted in the constitution, okay, for separate list related to the GST. It's very important one. Answer is bit A. Then question number 4, under GST, value addition refers to expenses plus profit, cost plus profit, cost plus tax plus profit, tax plus profit. Related to the value addition, you see, suppose one producer purchase raw materials, okay, purchase raw materials at the price of suppose rupees 1 lakh, right? Purchase raw materials at the rate of rupees 1 lakh, suppose plus GST. Clear? Then next one, then he sells the output, he sells the output, okay, 1.5 lakh at 1.5 lakh plus GST. So it means how much value added. So just you exclude the GST, purchase of raw material at rupees 1 lakh, right, and sells the output at 1.5 lakh. So it is value addition is there. It means on inputs actually the producer spent 1 lakh, then profit is also 50,000, 1.5 lakh actually he sold the output. Okay, so in this case actually value addition refers to expenses plus profit. Answer is bit A, expenses plus profit. So from this example you see, purchase raw material at rupees 1 lakh, and then after production he sells the output at 1.5 lakh. So how much value addition is there? Value addition is there, it is 50,000. So 50,000 is the profit, nahi? 50,000 is the profit. So expenses plus profit. Okay. So other options are there. It is cost plus tax, cost plus tax plus profit, tax plus profit. So it is expenses plus profit, right? So answer is bit A. Next one, the tax which was not merged into GST. इसमें ऐसा कौन सा टैक्स है जो GST में मर्ज नहीं हुआ है? काउंटरवेलिंग टैक्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, परचेज टैक्स. एक्चुअली बेसिक BCD, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी. This tax actually it is not merged into GST. So it means in subsequent time I will discuss about the BCD, basic customs duty, but now just you remember when any commodity actually imported from abroad, okay, when the commodity imported from abroad, जो बाहर से import किया गया, suppose इंडियन करेंसी में उसका प्राइस 100 है एंड सपोज बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, तो इसमें 100 रुपीज़ का 10 आप ऐड कर दिए, तो ये हो गया 110. इट मीन्स प्राइस प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी. जब गुड आ जाएगा ना इंपोर्ट होकर, तब तो उसके ऊपर BCD लगेगा 10%. तो 100 ये है एक्चुअली जो गुड को इंपोर्ट किया गया उसका सपोज प्राइस इंडियन रुपी में इट इज़ ₹100, BCD 10% है, तो इट इज़ 110 हो गया. तो इसके ऊपर IGST लगेगा. 110 के ऊपर मैं बोला था चाहे इंटरस्टेट ट्रांसफर हो, इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांसफर, और इन केस ऑफ सपोज गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रोड, सो IGST लगता है. तो यहाँ पर जो IGST लगेगा वो 110 के ऊपर लगेगा, क्योंकि वो इंडिया इट मीन्स बेसिकली द डोमेस्टिक बेसिकली प्राइस. Okay, suppose you remember in Indian rupee, okay, the price of the imported commodity is 100, BCD is 10%, basic custom duty. So 10% of rupees 100, it is rupees 10, 110 हो गया ना, तो उसके ऊपर IGST लगेगा. सपोज IGST इट इज 18%, ये जो IGST कैलकुलेट होगा वो 110 के ऊपर लागू होगा. तो एक्चुअली वो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी एक्चुअली वो मर्ज नहीं हुआ है GST में, अदर सब मर्ज हुआ है.
राइट। क्वेश्चन नंबर 5 बिट सी। चलो नेक्स्ट एक कैलकुलेशन के ऊपर देखेंगे, कैलकुलेटिंग जीएसटी ऑन इंपोर्ट्स। बेसिकली व्हेन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रोड, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट जीएसटी। तो डेफिनेटली जब इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि इंपोर्ट्स मीन्स आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट ट्रांसफर, एंड इन केस ऑफ इंपोर्ट्स आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहां पर जो दिया है, एक एग्जांपल दिया है, आप क्लियर हो जाओगे। द असेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल अप्लाई एट द वैल्यू ऑफ ₹100। सपोज इट इज द value of the goods. For example, suppose value of the goods in Indian rupee it is ₹100, basic custom duty it is 10%, IGST दिया है 18%। तो IGST किसके ऊपर लगेगा? तो बेसिकली असेसेबल वैल्यू इट इज 100, BCD 10 हो गया, क्योंकि BCD जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है। तो 100 रुपीज के ऊपर 10% आप निकाल दीजिए, प्लस इट इज 10% ऑफ ₹100 नहीं, तो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी हो गया ₹10 हो गया, और ये जो जब 10 हो गया इट इज 110 हो गया नहीं, 100 रुपीज प्लस 10 BCD, तो इसके ऊपर IGST लगेगा। तो IGST इज 18%, तो 18% ऑफ 110 इट इज 19 रुपीज 80 पैसे। सो इससे कैलकुलेट होता है। ओके, यहाँ पर जो GST इंटीग्रेटेड टैक्स जो मिलेगा वो 19 रुपीज 80 पैसे होगा। और ये कैसे डिवाइड होगा? ये जो IGST है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट करेगा, मगर फाइनली ये जो गुड इंपोर्ट हुआ है, जो इंपोर्टर ने ये गुड को इंपोर्ट किया है, सपोज वो इंपोर्टर उड़ीसा का है, ठीक है, वो इंपोर्टर उड़ीसा का है, तो बेसिकली उड़ीसा गवर्नमेंट को उसका 50% मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड जो इंटीग्रेटेड GST इट इज कितना मिला, 19 रुपीज 80 पैसे मिला ना। तो 19 रुपीज 80 पैसे का 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट को, क्योंकि जो इंपोर्टर है वो बिलोंग्स टू उड़ीसा है। तो इसमें ऐसे IGST के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, IGST का कलेक्शन जो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, देन इट इज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स एक्चुअली वेयर द कंज्यूमर purchasing the commodity. Okay, in which state actually it means the place of supply is there. So in this case actually जो importer है उड़ीसा का है, जो definitely place of supply उड़ीसा होगा, तो जो IGST कलेक्शन हुआ उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 50% उड़ीसा को जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर एक सेस लगता है जिसको बोलते हैं कॉम्पेंसेशन सेस। कॉम्पेंसेशन सेस, तो यहां पर ये जो सेस के ऊपर कैसे कैलकुलेशन होगा? वैसा ही जो असेसेबल वैल्यू है 100 रुपीज है, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% था। ओके, बेसिक कस्ट BCD जो BCD था वो 10% था। BCD किस जो BCD है बेसिक कस्टम ड्यूटी वो किसके ऊपर लगेगा? असेसेबल वैल्यू के ऊपर लगेगा। तो टोटल कितना हो गया? 110 हो गया, ₹110 इट इज असेसेबल वैल्यू प्लस BCD। तो इसके ऊपर IGST लगेगा। IGST कितना हो गया? IGST 18% है। IGST कितना कलेक्ट हुआ? 19 रुपीज 80 पैसे। ठीक है, तो जो कॉम्पेंसेशन सेस भी लगेगा वो 110 के ऊपर लगेगा, मगर जब यहां पर याद रखना है जब कॉम्पेंसेशन सेस लगेगा वहां पर IGST ऐड नहीं होगा। ओके, कॉम्पेंसेशन सेस जब कैलकुलेशन होगा ना, IGST जो 19 रुपीज 80 पैसे वो ऐड नहीं होगा, वो ओनली किसके ऊपर ऐड होगा? वही असेसेबल वैल्यू प्लस BCD, उसके ऊपर ही कॉम्पेंसेशन सेस को कैलकुलेट किया जाएगा। तो GST कॉम्पेंसेशन सेस 15% है, तो कॉम्पेंसेशन सेस कितना हो गया ना? 15% ऑफ ₹110, ठीक है, 16 रुपीज 50 पैसे। तो GST टोटल GST कितना कैलकुलेट होगा? तो दोनों को ऐड कर दीजिए, एक है IGST प्लस कॉम्पेंसेशन सेस, दोनों को ऐड कर देने से कितना हुआ? 36 रुपीज 30 पैसे। तो जब सेस का बात आएगा ऐसे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। यहां पर दिया है इफ ए टैक्स पेबल ऑन द आउटपुट इज ₹150 and the tax paid on the input was 300, then the entity can claim an input tax credit ITC of dash and the remaining amount of dash will be needed to deposit in taxes। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मैं इसके ऊपर क्लैरिफाई करता हूँ, इसके ऊपर भी आगे में एग्जांपल मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आईटीसी के ऊपर क्या कैलकुलेशन है ना, जब एक प्रोड्यूसर जब इनपुट खरीदा था तो इनपुट जब वो खरीदा था तब वो इतना टैक्स दिया था, ₹300 वो टैक्स दिया था। अभी वो जब प्रोडक्शन के बाद आउटपुट सेल कर रहा है तब उसको टैक्स वो कितना कलेक्ट कर रहा है ना, 450, वही दिया टैक्स पेएबल ऑन द आउटपुट। तो जब इनपुट जब वो सपोज रॉ मटेरियल्स, ओके, जब रॉ मटेरियल्स खरीदा था तब वो इट मीन्स उसके ऊपर टैक्स कितना दिया था, 300 रुपीज दिया था। कि जब इनपुट खरीदा था वो 300 रुपीज दिया था। अभी जब आउटपुट को सेल किया उसको 450 रुपीज वो टैक्स पे किया। और अभी क्या होगा इसमें, जो इनपुट टाइम में वो जो टैक्स दिया था 300 रुपीज, अभी उसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो 300 रुपीज उसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी वो एक्चुअली आउटपुट केस में वो कितना टैक्स पे कर रहा है, 450। तो उसका अकाउंट को 300 आ जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि वो इनपुट टाइम में जब वो रॉ मटेरियल्स खरीदा था या अदर कोई भी इनपुट खरीदा था उस समय वो 300 रुपीज टैक्स दिया था। ठीक है, वो 300 रुपीज अभी उसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो एक्चुअली गवर्नमेंट को अभी कितना टैक्स गया जब आउटपुट के बाद, वो 150 रुपीज एक्चुअली टैक्स गया। तो वही क्वेश्चन है, जो आईटीसी होगा वो 300 होगा, यहां पर 300 एंड द रिमेनिंग अमाउंट जो 150 रहा इट विल बी नीडेड टू डिपॉजिट इन टैक्सेस। तो आंसर बिट सी होगा। ओके, आंसर बिट सी होगा। समझ में आ गया? तो आपको यहां पर ऐसे मैंने दोनों के ऊपर टैक्स नहीं है, टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम नहीं है, क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स होगा तो वो कास्केडिंग इफेक्ट है, वो भी जीएसटी में अबोलिश हुआ है। ओके, तो अब जो जब वो आउटपुट बेचा ना उस समय वो 450 टैक्स एक्चुअली पे किया। इफ ए टैक्स पेएबल ऑन द आउटपुट इज 450, मगर जब इनपुट वो खरीदा था वो 300 रुपीज टैक्स दिया था प्रोड्यूसर ने, तो वो 300 रुपीज अभी उसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी जो आउटपुट टाइम में वो 450 रुपीज दिया था, अभी उसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 300 रुपीज, क्योंकि वो 300 रुपीज पेड किया था जब वो इनपुट खरीदा था। तो बैलेंस जो है 150 वो एक्चुअली विल बी नीडेड टू डिपॉजिट इन टैक्सेस। ठीक है, तो आंसर इज बिट सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहां पर देख लीजिए, अभी जो डिस्कशन किया था यहां पर एक क्वेश्चन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है यहां पर। इनपुट क्रेडिट मींस एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट you can reduce the tax you have already paid on inputs and pay the balance amount। क्योंकि आप जब इनपुट खरीदा था जो टैक्स दिए थे उसको आप डिटेक्ट कर लीजिए कि कितना टैक्स दिया था इनपुट टाइम में, और अभी जब आउटपुट आप सेल किया, ठीक है, तो जो आउटपुट सेल किया तब आपको टैक्स कलेक्ट हुआ, तो उसी से आपको इनपुट टाइम में जो टैक्स आप पे किए थे उसको माइनस कर दो, बाकी बैलेंस एक्चुअली वो गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल देख लो। इफ मिस्टर ए परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹18,000, जीएसटी 18%, तो जीएसटी हो गया 18% मीन्स 3,240। तो जब मिस्टर ए, ठीक है, वो 18,000 वर्थ का गुड खरीदा था तब वो जीएसटी कितना पे किया था, 3,240। अभी वो क्या किया, ये इट मीन्स ये इनपुट है, ये जो रिलेटेड है ये इनपुट टैक्स है। यहां पर मैं लिखता हूं ये इनपुट टैक्स है। अभी वो क्या किया, आउटपुट को बेचा 22,000 में, तो उतना ही, तो वो टैक्स कितना कलेक्ट किया, 3,960। तो जब इनपुट खरीदा था वो कितना टैक्स दिया था, 3,240। अभी जब वो देन क्या किया, वो इनपुट्स को कन्वर्ट किया आउटपुट को। अभी जब आउटपुट को बेचा वो 22,000 में बेचा और वो टैक्स कलेक्ट किया 3,960। तो ऑटोमेटिकली इनपुट टाइम में वो जो टैक्स दिया था वो ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और बाकी जो बैलेंस है वो पे करेगा। तो वही उसका कैलकुलेशन यहां पर दिया है, देखिए। ठीक है, आउटवर्ड जीएसटी पेबल, ये जब आउटवर्ड जीएसटी मीन्स ये जब आउटपुट को वो सेल किया इतना टैक्स पे किया, और ये जो है ये इनपुट जब खरीदा था उस समय वो टैक्स पे किया था।
ओके, मिस्टर ए ने जब इनपुट खरीदा था इतना टैक्स पे किया था। ओके, अभी वो आउटपुट को सेल किया और इतना टैक्स एक्चुअली वो पे किया 3960। तो अभी इनपुट टाइम में जो टैक्स वो पे किया था अभी उसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा उसका अकाउंट में, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो बाकी जो बैलेंस रहा 720 वो एक्चुअली कैश में पे किया जाएगा। नेट जीएसटी पेबल थ्रू कैश इट इज ₹720। तो इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको बोलते हैं। जो आप इनपुट खरीदा था जब टैक्स दिए थे वो रिटर्न आ जाएगा आपका अकाउंट को। ठीक है, आईजीएसटी का कैलकुलेशन थोड़ा देखेंगे। जो इंटर स्टेट ट्रांसफर होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी इसको कहा जाता है कि फेडरल टैक्स कहा जाता है, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांसफर जो बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर होगा वही स्टेट एक्चुअली एक शेयर होता है। आईजीएसटी जो है इंटीग्रेटेड जीएसटी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। इंटर स्टेट ट्रांसफर ये बेसिकली आ जाता है इंटर स्टेट ट्रांसफर, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इस केस में आईजीएसटी एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है और वो शेयर होता है, वो डिवाइड हो जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट। स्टेट मीन्स विच इज द कंसर्न स्टेट ना, इट मीन्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। जो स्टेट ने बेसिकली गुड को इंपोर्ट किया फ्रॉम अदर स्टेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी सपोज जैसे गुड ट्रांसफर हो रहा है, आपको थोड़ा बता देता हूं तो फिर उसके ऊपर हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे गुड ट्रांसफर हो रहा है महाराष्ट्र टू उड़ीसा। ओके, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट महाराष्ट्र है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट महाराष्ट्र है, मगर वो गुड सेल हो रहा है उड़ीसा में। तो ये ट्रांसफर हो गया, तो यहां पर आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, आईजीएसटी लगेगा, तो ये आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। ठीक है, और इसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और जो 50% वो उड़ीसा को जाएगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है? उड़ीसा। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि गुड तो मैन्युफैक्चर हुआ, ओरिजिन स्टेट महाराष्ट्र है, बट वो गुड ट्रांसफर हो गया उड़ीसा को। तो उड़ीसा हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई, उड़ीसा हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया? तो तो 50% जो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 50% प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट, जिस स्टेट में एक्चुअली वो गुड को कंज्यूम करेंगे कंज्यूमर्स, उड़ीसा को जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल दिया है, आप देख लीजिए। There is a registered trader Mukesh based out of Ahmedabad, Gujarat, who sold goods to Ajay, a trader based out of Mumbai. वो 20 लाख में बेचा, मुकेश अजय को बेचा ₹20 लाख में। मुकेश बिलोंग्स टू गुजरात एंड अजय जो रेसिपिएंट है बिलोंग्स टू मुंबई महाराष्ट्र। तो अभी आईजीएसटी रेट जो है 5% है। ठीक है, तो आप देख लीजिए अभी प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया मुंबई महाराष्ट्र, तो अजय पेमेंट हो गया 21 लाख, क्योंकि आप कैलकुलेट कर लीजिए 20 लाख के ऊपर 5% ऑफ 20 लाख, 5% ऑफ 20 लाख, तो ये 1 लाख हो गया। ये टैक्स कैलकुलेशन हो गया ना 1 लाख। तो अजय जो खरीदा मुकेश से वो 21 लाख इंक्लूडिंग जीएसटी, नहीं कि जो एक्स्ट्रा 1 लाख वही है टैक्स है। तो आईजीएसटी कितना कलेक्ट हुआ? 1 लाख कलेक्ट हुआ। तो यहां पर जो 1 लाख कलेक्ट होगा उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, उसका 50% 50,000 किसको जाएगा? प्लस 50,000, नहीं कि इसको 50-50 कर देंगे, तो 50,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और जो 50,000 है वो प्लेस ऑफ सप्लाई, कौन सा स्टेट को वो गुड आया? अभी महाराष्ट्र को आया तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो बेसिकली मुंबई है, महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 50% जाएगा। तो ये जो 1 लाख है, 1 लाख जो आईजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। और जो प्लेस ऑफ सप्लाई, जो स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स अभी बेसिकली ये जो गुड्स आया ना, ये गुड्स अभी महाराष्ट्र का कंज्यूमर्स एक्चुअली कंज्यूम करेंगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र हो गया। तो महाराष्ट्र स्टेट मुंबई हो गया ना, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही 50,000 जाएगा। तो वही कैलकुलेशन दिया है, देखिए आईजीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 1 लाख, ट्रेडर अजय सेलिंग द कमोडिटी इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, तो जो ट्रेडर अजय है वो एक्चुअली कमोडिटी को कहां पर सेल करेगा? महाराष्ट्र में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र हो गया। तो जो आईजीएसटी कलेक्ट हुआ 1 लाख, जो आईजीएसटी कलेक्ट हुआ 1 लाख,
तो उसका 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाएगा महाराष्ट्र को, है ना। तो क्योंकि जीएसटी इज ए कंजप्शन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स, तो डेस्टिनेशन अभी हो गया महाराष्ट्र, ओके, डेस्टिनेशन हो गया महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ही कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन ऑफ आईजीएसटी, राइट। तो वही चीज है, 50,000 ऑफ आईजीएसटी गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50,000 गोज टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लेंगे कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, दैट इज टू से द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी टैक्स्ड एट द प्लेस वेयर दे आर कंज्यूम्ड। हम जानते हैं जिस स्टेट में एक्चुअली गुड्स कंज्यूम होगा उसी स्टेट को ही जीएसटी जाएगा। जो आईजीएसटी का बात यहाँ पर ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ना, जिस स्टेट में एक्चुअली गुड्स को कंज्यूम किया जाएगा उसी स्टेट को एक्चुअली फायदा मिलेगा, उसी स्टेट एक्चुअली टैक्स कलेक्ट करेगा एंड नॉट टू द ओरिजिन, ओके। जैसे महाराष्ट्र से उड़ीसा, महाराष्ट्र में एक्चुअली ओरिजिन है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मगर वो सप्लाई हो गया उड़ीसा को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा हो गया ना, तो उड़ीसा में कंज्यूमर्स इसको कंज्यूम करेंगे, तो फाइनल डेस्टिनेशन उड़ीसा हो गया, तो उड़ीसा गवर्नमेंट को फायदा मिला। जो टैक्स कलेक्शन जो इंटर स्टेट में जो आईजीएसटी का 50% उड़ीसा गवर्नमेंट को गया, तो वही है। सो द स्टेट वेयर दे आर कंज्यूम्ड विल हैव द राइट टू कलेक्ट जीएसटी, राइट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट चलेंगे, हियर प्लेस ऑफ सप्लाई इज क्रूशियल। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई को मैं बता चुका हूं, ये प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बोलेंगे ना, जिस बेसिकली स्टेट में, ओके, इन व्हिच स्टेट एक्चुअली कंज्यूमर्स एक्चुअली कंज्यूम द प्रोडक्ट, फाइनली इन व्हिच स्टेट द कमोडिटी सेलिंग टू द कंज्यूमर्स, और फाइनली in which state the consumers consume the product or commodity। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी डिफाइंस whether the transaction will be counted, अच्छा, इंट्रास्टेट मीन्स विद इन स्टेट, इंट्रास्टेट इट इज विद इन स्टेट, इंटरस्टेट स्टेट टू स्टेट, ठीक है। एंड इंट्रास्टेट केस में है क्या है ना, एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, ओके, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड, ओके, 50-50 हो जाता है, ये 50% है, ये 50% है। मगर इंटर स्टेट में, ये जो इंटर स्टेट है ये है कलेक्शन होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी कलेक्शन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, तो जितना होगा वो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट है उसको 50% जाएगा। यहां पर दिया है एग्जाम्पल्स को, जो दिया है देखिए इंट्रास्टेट, और एग्जाम्पल 1 को देखिए, इंट्रास्टेट सेल्स मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र सेल्स 10 टीवी सेट्स टू मिस्टर विजय ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। तो ये जो नागपुर हो गया वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर हो गया, नहीं कि यहां पर, तो उसी स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है, ओरिजिन है मुंबई मगर एक्चुअली वो सप्लाई कहां पर हुआ, नागपुर, नागपुर हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां पर जो है लगेगा इंट्रास्टेट में सीजीएसटी प्लस क्या है, एसजीएसटी। सपोज यहां पर क्या है, जैसे 18% है जीएसटी है, तो उसका 9% किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। समझ में आ गया, ये सेम स्टेट के अंदर। और एग्जांपल 2 देखिए, इट इज इंटर स्टेट सेल्स, यहां पर दिया है देखिए, इंटर स्टेट सेल्स मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र सेल्स 30 टीवी सेट्स ऑफ मिस्टर विनोद ऑफ बैंगलोर कर्नाटका। तो बैंगलोर हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई, मगर ओरिजिन है महाराष्ट्र, ओरिजिन है महाराष्ट्र, ठीक है, ओरिजिन है महाराष्ट्र, मगर प्लेस ऑफ वो ट्रांसफर हो गया, यहां पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, नहीं कि, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अभी ये बैंगलोर हो गया, तो जो आईजीएसटी है वो 50% किसको जाएगा, सेंट्रल सीजीएसटी नहीं कि जाएगा, और जो 50% होगा वो एक्चुअली कर्नाटका गवर्नमेंट को जाएगा, और 50% वो किसको जाएगा ना, कर्नाटक गवर्नमेंट को जाएगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका हो गया। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। तो यहां पर एक्सपोर्ट्स कहां से हुआ, मुंबई से हुआ, तो एक्सपोर्ट्स आर अलाउड विथ 0 टैक्सेस। जब एक्सपोर्ट्स हुआ, एक्सपोर्ट्स आर अलाउड विथ 0 टैक्सेस, इसको याद रखना है। व्हेयरएज इंपोर्ट्स आर टैक्स्ड, इंपोर्ट्स मींस अभी बैंगलोर को इंपोर्ट हुआ ना, द गुड एक्चुअली इंपोर्ट, इट मींस द ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर, है कि नहीं। तो इस केस में एक्सपोर्ट जो एरिया हुआ वो मुंबई हुआ, तो बैंगलोर के लिए वो इंपोर्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट्स आर अलाउड विथ 0 टैक्सेस, व्हेयरएज इंपोर्ट्स आर टैक्स्ड ऑन पार विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में टैक्स वो कैलकुलेशन होता है वैसा ही अभी जो ये जो गुड इंपोर्ट हुआ मुंबई से,
ओके बेंगलोर को, ठीक है, वैसा ही टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। मगर एक्सपोर्ट्स आर अलाउड विथ जीरो टैक्सेस। जब एक्सपोर्ट हुआ मुंबई टू बेंगलोर आ गया, मुंबई में कोई ऐसा कुछ टैक्स फैक्स कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स कैलकुलेशन नहीं होगा, एक ही जगह में टैक्स कैलकुलेशन होगा। और यहां पर जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो बेंगलोर में होगा। और जो कौन सा स्टेट टैक्स कलेक्ट करेगा इस केस में, ना कर्नाटका, क्योंकि वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। और अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी इज ए मैटर ऑफ jurisdiction of union government, state government, both center and state government, none of these, it is both center and state government, answer is bit C, okay. It is a matter of jurisdiction of both center and state government, see GST and SGST ना, right, answer is bit C। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी अफेक्ट्स द रेवेन्यू ऑफ कंज्यूमिंग स्टेट्स, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, ऑल द स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को रेवेन्यू नहीं मिलता है, ओके, वहां पर रेवेन्यू अफेक्ट होता है। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र जो है वो ओरिजिन स्टेट है, मगर वो ट्रांसफर हो गया उड़ीसा को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया उड़ीसा। तो जब गुड ट्रांसफर हो गया महाराष्ट्र टू उड़ीसा, तो उड़ीसा गवर्नमेंट को ही टैक्स कलेक्ट करेगा, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन उड़ीसा हो गया, और वो कमोडिटी एक्चुअली कंज्यूम बाय द उड़ीसा कंज्यूमर्स, तो टैक्स गोज टू द उड़ीसा गवर्नमेंट। उड़ीसा गवर्नमेंट क्या है, कंजप्शन स्टेट है, तो कंजप्शन स्टेट को ही फायदा मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को फायदा नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो है आंसर बिट बी है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट का रेवेन्यू अफेक्ट होगा, राइट, आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर जीएसटी लॉ टैक्स रेट्स आर डिटरमाइंड। जो टैक्स रेट्स होता है वो डिटरमाइन होता है जीएसटी काउंसिल। इसके ऊपर मेरा जो थर्ड पार्ट आएगा मैं जीएसटी काउंसिल के ऊपर बताऊंगा। अभी जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स है 33 मेंबर्स है। कैसे ना, 2 फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, चेयरमैन तो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर एक्चुअली चेयरमैन है, और एक मिनिस्टर नॉमिनेट होता है जो बेसिकली स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर टू स्टेट। तो सेंट्रल लेवल में 2 मिनिस्टर हो गए, चेयरमैन तो हो गया फाइनेंस मिनिस्टर, और एक है मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर टू स्टेट हो गया। और 28 स्टेट से एक एक मिनिस्टर चूज होगा, चाहे 28 स्टेट से क्या होगा ना, देखिए 2 हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, 28 हो गया स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सभी स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर एक्चुअली नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जो 3 आ गया वो यूनियन टेरिटोरीज से आ गया, यूटी से, ठीक है। तो 2 सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, अभी जो 33 है, हाँ 33 हो गया ना, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 इज फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन एंड अनदर इट मीन्स मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस टू स्टेट। तो 2 जो मिनिस्टर हो गए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, 28 स्टेट से फ्रॉम ईच स्टेट 1 मिनिस्टर इज कमिंग, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और 3 जो मेंबर्स होंगे वो यूनियन टेरिटोरीज से होंगे। तो 33 मेंबर्स है, उसके ऊपर मैं डिटेल्स एक्चुअली नेक्स्ट मेरा थर्ड पार्ट में डिस्कस करूंगा। मगर ये जो टैक्स रेट्स है अभी जैसे चल रहा है, 0 एग्जेम्प्टेड, फुली एग्जेम्प्टेड 5%, 12%, 18% एंड 28%, तो इसको जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। और अभी जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ था 2022 में, वो 48th जीएसटी काउंसिल ओके मीटिंग था, 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। तो आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 10, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 1% इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड बाय। जब इसमें एक्चुअली हु रिसीव द सप्लाई एंड टीडीएस 1% must be deducted. Any GST dealer, government departments, e-commerce operators, composite dealers, actually government departments. Answer is bit B. जब government departments वो receive करते हैं, in the case of supplies received by government departments, जब goods actually receive करते हैं government departments, उसका जो वैल्यू होता है उसका 1% TDS डिडक्ट होता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1% टीडीएस डिडक्ट होगा, और बाकी जो है वो पेमेंट किया जाएगा।
तो वही है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 1% is applicable in the case of supplies received by government departments. Answer is bit B. Question number 11. Dash confers powers to Government of India to collect a tax on intra-state supply. Intra-state supply means बेसिकली कौन सा एक्ट में इंट्रास्टेट सप्लाई जो CGST 50% और जो SGST इंट्रास्टेट में विद इन द स्टेट जब गुड्स का ट्रांसफर होता है, नहीं तो 50% CGST 50% SGST होता है। तो इस कौन सा एक्ट है, जो एक्ट है वो CGST एक्ट 2017 देख लीजिए। इसी एक्ट में ओके क्लियरली मेंशन हुआ है कि जब विद इन स्टेट एक्चुअली गुड्स ट्रांसफर होगा तब वहां पर जो GST कलेक्ट होगा उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 50% उसी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, नहीं वो CGST एक्ट 2017 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर बिट सी। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेटेड GST इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स और सर्विसेज। ओके, तो मैं बताया था जो IGST होता है ना वो दो केस में लागू होगा, एक है इंटरस्टेट ट्रांसफर, एक है इंटरस्टेट ट्रांसफर और एक है इंपोर्ट्स। सपोज इंपोर्ट्स फ्रॉम अब्रोड, ओके इंपोर्ट्स फ्रॉम अब्रोड, दोनों केस में IGST कलेक्ट होता है। तो हो गया आंसर इज बिट डी। जो इंटीग्रेटेड GST है वो इंटरस्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब गुड्स ट्रांसफर होगा IGST लगेगा। और सिमिलरली व्हेन गुड्स एक्चुअली इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रोड तो उस केस में IGST लगेगा, उसका कैलकुलेशन भी बताया था। तो आंसर इज बिट डी। क्वेश्चन नंबर 13, IGST collected belong to central government, to the state in which supply occurs, to the state to which supply occurs, the center and state, so दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है IGST। एक्चुअली IGST का कलेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, मगर उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 50% जो फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन मीन्स जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। सपोज अभी बाहर से इंपोर्ट हुआ और इंपोर्टर कौन सा स्टेट का है, सपोज इंपोर्टर जिस स्टेट का होगा उसी स्टेट में वो गुड को बेचेगा, क्योंकि जो GST है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। तो जो इंपोर्टर, सपोज इंपोर्टर अभी जो है वो ओडिशा से है तो फाइनली ओडिशा में उसको बेचा जाएगा। इट मीन्स बेसिकली ओडिशा कंज्यूमर्स एक्चुअली कंज्यूम द कमोडिटी, तो उसका 50% जो IGST कलेक्शन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कंसर्न स्टेट where finally the commodity finally consumed, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आंसर इज बिट डी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर दिया है, देखिए 1000 bags of sugar आर सप्लाइड बाय शुगर मिल इन चेन्नई टू ए होलसेलर इन एर्नाकुलम। तब ट्रांसफर हो गया चेन्नई टू एर्नाकुलम, ट्रांसफर हो गया, ओरिजिन है चेन्नई, ये ओरिजिन है ओके ये प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, एर्नाकुलम आ गया। तो शुगर बैग्स आर सेंड बाय द मिल टू द एर्नाकुलम, शुगर बैग्स आ गया अभी एर्नाकुलम में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया एर्नाकुलम। तो पेमेंट हो गया, पेमेंट मेड बाय चेक पेबल एट SBI मदुरई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम डिटेल प्लेस ऑफ सप्लाई में लिख दिया ना, तो फाइनली कहां पर गुड्स को बेचा जाएगा, फाइनली किस एरिया में गुड्स को कंज्यूम किया जाएगा, एर्नाकुलम में, वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। आंसर इज बिट ए, एर्नाकुलम। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे। The goods and services tax is a tax system, single point, multi-point, regressive, none of these. It is a multi-point. मैं अभी बताया इनपुट टैक्स क्रेडिट, जहां पर सेल होगा वहां पर टैक्स लगेगा, तो मल्टी पॉइंट में सेल होता है, जहां पर सेल होगा वहां पर टैक्स लगेगा। मगर जैसे जो इनपुट, सपोज आप रॉ मेटेरियल्स खरीदे थे, तो रॉ मेटेरियल्स जब खरीदे थे जो टैक्स आप पे किया था, आप जब आउटपुट अभी सेल कर रहे हो और जो टैक्स पे कर रहे हो, तो उससे आपका जो इनपुट जब खरीदा था जो टैक्स आप पे किए थे वो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, वही है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। मगर जिस जहां पर सेल होगा, जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, जहां पर सेल होगा वहां पर टैक्स लगेगा, तो वही है मल्टी पॉइंट टैक्स सिस्टम, ठीक है। आंसर इज बिट बी। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो स्टेटमेंट्स दिया गया है, बिजनेस हुज एग्रीगेट टर्नओवर,
is a financial year exceeds rupees 20 lakhs has to mandatorily register under goods and services tax. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 20 lakhs होगा, कंपल्सरीली वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा ग्रेटर देन 20 lakhs. मगर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसे नॉर्थ ईस्ट, ओके, नॉर्थ ईस्ट यहां पर आ जाएगा. तो यहां पर क्या है, जब एनुअल टर्नओवर, ओके, ऑफ द प्रोड्यूसर, ओके, इट इज ग्रेटर देन 10 लाख होगा. स्पेशल बेसिकली स्टेट्स में जब एनुअल जो एग्रीगेट टर्नओवर है ग्रेटर देन 10 लाख होगा, तब वहां पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. दिस लिमिट इज सेट एट रुपीज 10 लाख फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स. वही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, फ्लैग्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. तो आपको नॉर्मल में आपको याद रखना है, जब एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 20 लाख होगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा. जीएसटी पे करना है आपको, रजिस्ट्रेशन करना है और जीएसटी देना है. और स्पेशली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स, और वहां पर जब एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 10 लाख होगा, ओके, वहां पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा और जीएसटी पे किया जाएगा. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन. ठीक है, तो आज इतना ही है, 16 क्वेश्चंस. आप थर्ड पार्ट को वेट कीजिए, और थर्ड पार्ट में और कुछ फंडामेंटल चीज लाऊंगा. तो जो बेसिक चीज है वो क्वेश्चन पूछेगा, जो केवी का एग्जाम है आगे में. ठीक है, चाहे डिपार्टमेंटल हो और डायरेक्ट एग्जाम होगा फरवरी में, तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं. बेसिकली यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, जस्ट यू नो अबाउट द बेसिक, एंड ऑल्सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एट द टाइम ऑफ वाइवा. सो आज इतना ही है. थैंक यू, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, एंड अगेन यू वेट फॉर माई थर्ड पार्ट ऑफ जीएसटी एमसीक्यू. थैंक यू.